Well, in this week, we saw a major price correction in gold and silver. So gold has corrected by almost 20% during this week and silver has corrected by 36%. And if you guys are thinking whether this is the end of the rally we saw in gold and silver, or if the gold and silver have just taken a temporary dip and will start their rally from here, should we buy gold or silver, or should we just sell the gold and silver at this point in time? If these are your questions, then I will answer each one of them in this video. So without a further ado, let's start this video. And my name is Abhishek Yadav and you are watching a very important video. So we will understand this video in few different sections. Number one is what we are currently witnessing in gold and silver has already happened before in the history. और जैसा कि बोला जाता है that you should always look for clues from the history. We will also do the same because now we have a reference point. जब gold और silver में ऐसा historical rise जो आया है अभी, ऐसा देखने को मिला था similarly during 1979 and 82. So let us quickly see directly into the charts. How did the charts behaved? और उस टाइम पर gold और silver की price rise क्या अभी के price rise के similar है या नहीं, ये हम देखते हैं सीधा चार्ट्स में. Guys, this is the price chart of silver during 1978 and 82. So this is our reference period, right? Now during this time 1978 से लेके 1980 के starting तक silver saw a price rise of almost more than 900%. 10x हुआ था silver in a span of just 2 years. जो अभी कितना हुआ है हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे. Now let us quickly see how has silver behaved during the time where we are currently sitting in. So from October 2022 we saw a rally in silver of almost 740%. एक तरफ थी रैली 900% की within a span of 2 years और एक तरफ है रैली 740% की within a span of 2 years almost. This is the reason why we are comparing these two different time scenarios. 1979 or 2026, there is a gap of almost 5 decades and the history is repeating itself again. And what are the reasons of this price rally back in that era of 1979 and what are the reasons that we are witnessing the price rally in gold and silver now? Let's compare those reasons. So guys, 1978 और 79 के बीच में जो सिल्वर में रैली आई थी उसके पीछे 3 मेजर कारण थे. Number one was there was a decoupling of the US dollar. अब पहले के जमाने में दोस्तों जो करेंसी को प्रिंट करने के लिए आपके पास एक इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड या सिल्वर का रिजर्व होना चाहिए था. इसका मतलब ये है कि अब यूएस को और करेंसी प्रिंट करने के लिए एक गोल्ड का इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व की जरूरत नहीं थी. Then the second reason was that the Russia, which was the Soviet Union at that time, they invaded Afghanistan. तो क्या globally ना एक geopolitical tension वाला atmosphere था क्योंकि वो एक कोल्ड वॉर एरा के बीच में हम रह रहे थे उस टाइम पे जब यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे लेकिन एक कोल्ड वॉर में थे. और थर्ड रीजन था जब ईरान में आया ग्लोबल ऑयल शॉक. इरानियन रेवोल्यूशन हुआ 1979 में विच इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑयल और इससे एक इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था पूरी कमोडिटीज मार्केट में वो हिल गया था. एवरी इन्वेस्टर क्लास वाज रनिंग टू पुट देयर मनी इनटू समथिंग and that something came out to be gold and silver for majority of them. क्योंकि हर किसी को अपनी वेल्थ में एक हेज की जरूरत होती है दोस्तों, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और उस प्रोटेक्शन के लिए उनको लगा कि सिल्वर और गोल्ड इज द बेस्ट बेट वेयर वी कैन पार्क आवर मनी. अब इसके बीच में आती है दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हंट ब्रदर्स. अब ये हंट ब्रदर्स ने क्या किया, दे टुक द मेजॉरिटी सप्लाई ऑफ सिल्वर विच इज नॉन इंस्टीट्यूशनल. इसका मतलब यह है कि जो सिल्वर बच जाता है बैंक्स और गवर्नमेंट के खरीदने के बाद वो जो हिस्सा है उसका मेजॉरिटी चंक इन हंट ब्रदर्स ने खरीद लिया. अब बाकी लोगों के पास खरीदने के लिए बचा कम और इन्होंने उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी खरीद लिया. नाउ दे वर होल्डिंग द मेजॉरिटी चंक ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सिल्वर सप्लाई. अब सोच के देखिए जो एक आम जनता के पास जो सिल्वर अवेलेबिलिटी है अगर उसका मेजॉरिटी 50% से ज्यादा हिस्सा किसी एक इंसान के पास हो, ना कि सिर्फ फिजिकल डिलीवरी में बट एक फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, तो क्या होगा? सप्लाई शॉर्टेज, which is exactly what happened. Now when everybody was running to buy more gold and more silver,
These Hunt brothers were holding the majority supply of. इसीलिए प्राइस में एक एक्सट्रीम सर्ज आया, which is also comparable to what we are witnessing today. अब ये तो थी दोस्तों रैली 1979 के प्राइस राइज की. अब वो राइज कब फॉल में कन्वर्ट हुआ, अब हम बात करेंगे उस चीज के ऊपर. पहले देखते हैं चार्ट्स में, फिर जानेंगे इनके पीछे की क्या कारण थे कि वो प्राइस फॉल आया. After a 900% rise in silver, we saw a major correction in silver. It was a brutal one, guys. Almost 89% सिल्वर के प्राइसेस करेक्ट हुए थे इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 years. अगर आप देख सकते हैं सिल्वर ने टॉप लगाया 1980 जनवरी में, उसके बाद आप 1982 जून में हम डिस्कस कर रहे हैं, 2 से 2.5 साल के बीच में सिल्वर करेक्टेड मोर देन 85%. मैं चाहता हूं 1 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए प्लीज और सोचिए आप 1979 में, मैंने भी कर लिए, आप सोच के देखिए 1979 में आप एक इन्वेस्टर हैं और अफरा तफरी पूरी ग्लोबल सिनेरियो में जैसा हम अभी विटनेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा ही सिनेरियो है. अब आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा एसेट क्लास बाय करते हैं, गोल्ड और सिल्वर, जो अभी तक आप ये सोचते आ रहे थे कि सबसे सेफ है, राइट? आंखें बंद कीजिए गाइस. अब आपने अपनी मेजॉरिटी कैपिटल उसमें लगा दी और सोच के देखिए आप बैठे हैं 900% के रिटर्न में इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 or 1.5 years. 1 से 1.5 साल के बीच में सिल्वर 900% इंक्रीज हो चुका है एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? अब उसके बाद कुछ कारण जो भी हम डिस्कस करेंगे ऐसे होते हैं कि सिल्वर जहां से बढ़ना शुरू हुआ था 2 साल पहले, एग्जैक्ट उसी प्राइस पे आ जाता है आफ्टर 2 years. नाउ हाउ डू यू फील एज एन इन्वेस्टर? एक तरफ आपने देखी 900% की रैली और दूसरी तरफ आपने देखा 85% से ज्यादा प्राइस करेक्शन इन अ कमोडिटी विच इज नोन टू बी लीस्ट वॉलेटाइल एंड बेस्ट टू हेज योर पोर्टफोलियो. डर लगा सोच के? डरने वाली बात है दोस्तों, इतना आसान नहीं है. एंड नो एसेट क्लास इज रिस्क प्रूफ. दिस इज एग्जैक्टली माई पॉइंट बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो. नो एसेट क्लास इज रिस्क प्रूफ if when you are moving your capital from one asset class to another, अगर आप लैंड से गोल्ड में डाल रहे हैं, गोल्ड से इक्विटीज में डाल रहे हैं, इक्विटी से डेट में डाल रहे हैं, no asset class is risk free. You should always use historical comparisons and extreme scenarios if you are risking your capital in any asset class. इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हम समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर आर द बेस्ट रिस्क फ्री और लीस्ट रिस्की एसेट क्लासेस, दिस इज एन एग्जांपल दैट दे आर नॉट. कोई ऐसा एसेट क्लास जो 900% इंक्रीज करता है 1.5 साल के पीरियड में और नेक्स्ट 2 साल में 85% करेक्ट करता है और वहीं आ जाता है जहां से वो इंक्रीज होना शुरू हुआ था, दिस इज नॉट रिस्क फ्री प्लीज. And this is not least risky. I would say this is the most risky asset class during some particular periods of time. और जो अभी हम currently witness कर रहे हैं, that time is also one of them. It is among the most risky asset classes right now. Now let us quickly look at those reasons which led to the downfall in silver and in such a brutal manner. पहला कारण ये था कि US ने अपने interest rates को increase करना शुरू किया और उस इंक्रीज करने से लोगों का जो डॉलर में विश्वास था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. अब क्योंकि लोगों का डॉलर में विश्वास बढ़ रहा था तो कहीं से कम होना था, तो लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर को हेज ना मान के वहां से पैसा शिफ्ट किया डॉलर में. सो दिस वाज अ सेंटिमेंटल चेंज, कि सेंटिमेंट चेंज हुआ फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर बैक टू डॉलर. नाउ दिस सेकंड रीजन जिस वजह से बहुत ही शार्प और पेनफुल करेक्शन आया, दैट वाज व्हेन मार्जिन वाज स्टॉप्ड इन सिल्वर. बेसिकली जो लोग 1 लाख की कैपिटल से 10 लाख रुपए का सिल्वर बाय कर पा रहे थे, वो जो मार्जिन देते थे ब्रोकर्स, वो मार्जिन को कर दिया फिनिश. अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद आई एक मार्जिन कॉल टू दी हंट ब्रदर्स, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था. उनके पास थे बहुत सारे फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, नेचुरली उन्होंने मार्जिन पे उठाए हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स. उनके पास आती है एक मार्जिन कॉल की $100 मिलियन और दीजिए अपनी इन पोजीशंस को एज इट इज रखने के लिए. जब उनसे वो $100 मिलियन इकट्ठे नहीं हुए, दैट वाज द टाइम व्हेन दे लिटरली प्रेस्ड द
पैनिक बटन। अब जब गाइस पैनिक बटन दबा और जब मार्जिन अवेलेबिलिटी नहीं मीट हो पाई तो एक ही चीज बचती है होने के लिए, वो है सेलिंग। एवरीबडी वाज सेलिंग इनटू द मार्केट्स। अब जब खरीदार होते हैं कम और सिर्फ होता है सेलर, तो दाम नहीं देखे जाते, सिर्फ बेचा जाता है। इसीलिए 27 मार्च 1980 को बोला जाता है सिल्वर थर्सडे। ये वो दिन था गाइस जब सिल्वर एक दिन में 50% से ज्यादा करेक्ट करा था। ऑलराइट, सो अब आपको पता चल गया है वो हिस्टोरिकल कंपैरिजन 1978 से 1982 तक का। अब हम देखते हैं कि वो जो दौर था और आज का जो दौर है उसमें कितनी सिमिलैरिटीज है, और क्या जो इस वीक में सिल्वर में 30% करेक्शन आई है, क्या वो एक सिल्वर थर्सडे था? गाइस, आज के दौर में जो सिल्वर और गोल्ड में इंक्रीज आया है प्राइस में, आप शायद कहीं ना कहीं वाकिफ हैं इनके पीछे रीजंस क्या हैं। रीजंस गाइस ऑलमोस्ट हमेशा सेंटिमेंटल ही होते हैं जब एक एसेट क्लास को चेस किया जाता है, क्योंकि तभी एक यूफोरिया और एक फोमो बाइंग होती है रिटेलर्स के द्वारा एट द एक्सट्रीम टॉप। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हमें सबको पता है कि इस टाइम बहुत टेंस है। यूएस वेनेजुएला की वॉर चल रही है, रशिया यूएस की वॉर चल रही है, रशिया एंड चाइना आर सपोर्टिंग ईच अदर, यूएस इज टारगेटिंग इंडिया, यूएस इज अगेंस्ट चाइना। अब आ गया है यूएस और ईरान। अब यूएस और ईरान के बीच में टेंशंस चल रही हैं। तो इस सभी दौर में क्या है कि ग्लोबल ऑर्डर जो था दैट हैज शिफ्टेड एंड हैज डिस्टर्ब्ड। हु विल इमर्ज एज अ सुपर पावर इन दिस ग्लोबल टसल दैट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ? अब गाइस, जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, आई रियली वांट यू टू कंपेयर जो अभी हमने पहले के दौर में रीजंस देखे थे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप वांट्स अ इजी डॉलर, अ सॉफ्ट डॉलर, जिसका मतलब है कि ही इज सपोर्टिंग वीकनिंग ऑफ यूएस डॉलर। बट व्हाई? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप नाउ वांट्स यूएस टू बिकम अ एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, कि वो वहां प्रोडक्शन करे और वर्ल्ड में अपना सामान बेचें। उसके लिए उनको चाहिए एक वीक डॉलर। वीक डॉलर से क्या होता है, एक एक्सपोर्टर, जो भी उस देश का एक्सपोर्टर होता है, उसको फायदा होता है। अब ये सिर्फ यूएस की कहानी है, बाकी सारी कंट्रीज में भी अपनी इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही थी, जिस कारण से एवरीबडी वाज लुकिंग टू हेज देयर पोर्टफोलियो and was looking for a safe option of investing। और वो naturally 1978 और 79 की तरह इस बार भी गोल्ड और सिल्वर ही इमर्ज हुआ। Now again came a sentimental change। अब वो sentimental change रिटर्न्स को चेज नहीं कर रहा था। इस टाइम बात हो रही थी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की, कि हमारा पैसा बस बचा रहे, किसी जगह ऐसी जगह पार्क कर देते हैं। इसी दौर में न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स उसको पढ़ें और उससे इन्फ्लुएंस होके सिल्वर और गोल्ड जाके खरीदें। अब आपने भी गाइस वो आर्टिकल्स पढ़े होंगे जब आपको बताया गया होगा कि ईवी गाड़ियों में 10 गुना ज्यादा सिल्वर यूज होता है, सोलर बैटरीज में, सोलर पैनल्स में सिल्वर का यूजेज बहुत ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और फलानी फलानी इंडस्ट्रीज में सिल्वर की यूजेज बहुत ज्यादा है और सिल्वर की शॉर्टेज है। इसीलिए एवरीबडी इज नाउ बाइंग सिल्वर, और बैंक्स और सेंट्रल बैंक सब सिल्वर खरीद रहे हैं, तो आप लोग भी जाके सिल्वर और गोल्ड खरीद लो। ये आपको बताया गया। इसीलिए जो लास्ट लेग ऑफ रैली आई थी सिल्वर और गोल्ड में, ये बहुत शार्प इंक्रीज था इसमें प्राइस का। इसीलिए अगर आप देखेंगे दोबारा से चार्ट में, ये एक एक महीने के चार्ट हैं गाइस। अब हम देखते हैं लास्ट जो महीना था जनवरी, सिर्फ सिल्वर के चार्ट में जनवरी में गाइस सिल्वर एक महीने में ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज हुआ है। एक महीने में 80% का रिटर्न, आप सोच के देखिए कौन सा सेफ एसेट क्लास देता है। सो गाइस, इससे एक चीज प्रूव हो जाती है दैट व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ हैज एग्जैक्टली हैपेंड बिफोर एज वेल। और वो पीरियड था 1978 से लेके 1982 के बीच का, जो जस्ट अभी हमने इस वीडियो में देखा कंपैरिजन। अब गाइस, आपका अगर क्वेश्चन आता है तो क्या अभी भी सिल्वर 85% से ज्यादा गिरेगा? सो अभी गाइस एक टीजर जो इस हफ्ते हमें मिला है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ सिल्वर थर्सडे व्हिच आई वाज रेफरिंग टू, 27th of March 1980। इन जस्ट 1 week सिल्वर हैज करेक्टेड बाय 37%। अब सिल्वर यहां से कितना और गिर सकता है, ये तो गाइस अभी हमें कुछ आगे आने वाले वीक्स में पता चलेगा। नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज लुकिंग टू सॉफ्टन द यूएस डॉलर, बट जो नए फेड चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ही फेवर्स अ स्ट्रॉन्ग डॉलर। इनके बीच में भी जो टसल और एक कंफ्यूजन इन्वेस्टर क्लास में बिल्टअप हो रहा है, वो अब कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा किसी और एसेट क्लास में, या तो रहेगा गोल्ड और सिल्वर में,
or it will shift to some other asset class, maybe equities which are undervalued right now. अब ये guys एक दिन की story नहीं होती. This does not happen in just one day or a few weeks. इसमें बहुत महीने लग जाते हैं और नए एसेट क्लास को जब तक आइडेंटिफाई करता है वो स्मार्ट मनी, तब तक दूसरे एसेट क्लास से धीरे धीरे करके पैसा निकलता रहता है. बट टू पुट थिंग्स इन अ वेरी प्लेन सिंपल लैंग्वेज, गोल्ड और सिल्वर अभी है सबसे वॉलेटाइल एसेट क्लासेस. एंड जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस गाइस, दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन. गाइस चार्ट्स में यहां पे सिल्वर ने टॉप बनाया 4,20,000 पे, राइट? अब 4,20,000 से एक हफ्ते में सिल्वर करेक्ट करके 2,65,000 पहुंच गया. अब मान लीजिए अगर सिमिलर प्राइस करेक्शन आती है सिल्वर में, वही 85% के टाइप वाली, तो सिल्वर किस प्राइस रेंज में आ जाएगा अब आप लगा लीजिए. ये मैंने एक इलस्ट्रेशन के लिए प्राइस रेंज डाली है 70,000 से 1,00,000 रुपीज पर केजी. आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, 4,20,000 रुपए पर केजी जो आपने सिल्वर का दाम पिछले ही हफ्ते सुना था, अगर 1980 वाली टाइप प्राइस करेक्शन आई सिल्वर में, तो ये दाम 70,000 से 1,00,000 तक वापस आ जाएगा. क्या ये गारंटी है? एब्सोल्युटली नो. क्या ऐसा होगा? हम ये जानेंगे आगे आने वाले कुछ टाइम में. उस टाइम पे भी 1980 से 1982 तक प्राइस करेक्शन चला था, 2 साल, जब प्राइस करेक्ट करा था 85% से ज्यादा. अभी भी ऐसा ही होगा. अगर प्राइस करेक्ट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और सेंटिमेंटल चेंज रहता है कि सिल्वर और गोल्ड नाउ आर नॉट द बेस्ट एसेट क्लासेस, पैसा कहीं और निकलना शुरू होता है, तो वी विल विटनेस मोर करेक्शन इन सिल्वर. और अगर 85% की करेक्शन आई तो मैंने आपको बता दिया है, 4,20,000 का जो आपने दाम सुना था वो वापस 70,000 से 1,00,000 तक हो सकता है. और क्योंकि आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले कि गोल्ड में कैसा हो सकता है, मैं आपको जल्दी से कंपैरिजन करके बता देता हूं कि 1978 टू 82 में गोल्ड में क्या हुआ था और अभी क्या हो सकता है. सीधा चलते हैं चार्ट्स में गाइस. आई विल क्विकली डू अ रेफरेंस. मैंने करा नहीं था कंप्लीट, बट मे बी यू माइट बी हैविंग दीज क्वेश्चंस, तो मैं इसलिए जल्दी से करके बता देता हूं. तो गाइस 1978 से वो इस सेम दौर में गोल्ड इंक्रीज हुआ था 400%, राइट? सिमिलर सेम ही डेट्स होंगी गाइस, क्योंकि आज क्लासेस साथ में ही मूव करते हैं. अब सिल्वर था 900%, ये था 400%. अब यहां से गाइस 2 साल में प्राइस करेक्शन जो गोल्ड में आया था, दैट वाज 66%. 66% प्राइस करेक्ट करा था गोल्ड का और वहां करा था 85% से ज्यादा सिल्वर का. आज गोल्ड में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, राइट? हमने कंपेयर किया था अक्टूबर 2022 से पीरियड. तो गाइस अक्टूबर 2022 से गोल्ड बढ़ा है 268%, राइट? और अभी इस हफ्ते ही सिर्फ करेक्ट करा है 20%. अगर यहां से ये 66% करेक्ट करता है तो ये कहां तक पहुंच सकता है आप लगा लीजिए. गाइस एक रेंज में ड्रॉ कर देता हूं कि गोल्ड कहां तक आ सकता है. ये एक मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है गोल्ड का, जहां तक वो वापस आ सकता है कि अगर सिमिलर प्राइस करेक्शन हुई, जो कि है 60,000 से 70,000 रुपीज की प्राइस रेंज पर 10 ग्राम्स. और अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, जब आपका फाइनल जवाब का आंसर मिलेगा आपको कि क्या आपको अभी सिल्वर और गोल्ड खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए. गाइस मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से खुद इस चीज को एनालाइज कीजिए कि जब मैंने आपको एक हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट दिखा दिया है कि ऐसा एक टाइम पे हुआ था जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हम देख रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ ये भी अगर आप जानते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको जवाब चाहिए, तो गाइस आपको अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा. बिकॉज ग्रीड जो होती है, जो लालच होता है एक स्टॉक मार्केट में, वो बहुत भारी पड़ता है लॉन्ग टर्म सिनेरियो में. और इतना भारी पड़ सकता है कि जो एक सेफ एसेट क्लास होता है उसमें भी इतनी एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी वो लेकर आ सकता है. और इस चीज का टीजर आपको सिर्फ एक हफ्ते में मिल चुका है. और अगर मैंने आपको एक कड़वा सच और बता दिया तो आपके पास क्लियर जवाब मिल जाएगा. बताऊं? चलो एक और चीज बताता हूं. अगर अब आपको जवाब नहीं मिला तो सच में कभी नहीं मिल सकता. ये जो प्राइस टॉप गोल्ड में लगा था गाइस जनवरी 1980, आप मानेंगे नहीं, मंथ भी सेम, मंथ भी जनवरी ही था 1980 के टाइम पे, और अभी भी जनवरी और फरवरी ही चल रहा. अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो टॉप लगा, अगर मान लीजिए आपने उस टाइम पे इधर ही गोल्ड खरीदा होता तो आपको कितना टाइम वेट करना पड़ता ये प्राइस दोबारा आने के लिए.
आप एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं गाइस, ये 1980 से शुरू हुआ है, नीचे हम ये दीज आर द रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ द इयर्स 1990, 94। आगे चलते हैं, कौन सा साल है ये, पढ़िए नीचे। दिस इज जनवरी 2008। जो 1980 में टॉप था प्राइस गोल्ड का, उसको दोबारा वापस अचीव होने के लिए 28 साल लगे थे गाइस। 28 years आफ्टर 1980 it took gold to achieve the same price। अब सोच के देखिए, अगर यही सेम स्टोरी हम आज के टाइम में सिल्वर में देखें, और मान लीजिए आज जिस इंसान ने 4,20,000 रुपए पर केजी पे सिल्वर बाय किया है, आज चल रहा है 2026। यहां से मोटा मोटा अगर वापस 28 साल लग जाए आपको, तो सीधा हम पहुंच जाएंगे 2054 में। मैं आपको एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दे रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा हुआ है। So guys, this was my effort to spread the awareness, to educate you about what is happening in the stock market and the commodities market and the global financial world। और सच में अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, or was this reference point the correct way of teaching you? Alright, so we will wrap up this video here, and I really hope that you have learned something new about gold and silver. And if anybody comes tomorrow and asks you whether you're buying gold or not, now you have one unique reference point to discuss within your core investing and trading circles and act like a smart investor and trader. Well, that's it guys. Thank you so much for watching, and Jai Hind.